بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی ریڈ لائن نہیں بلکہ لائف لائن بھی ہے۔ یہ بات وزیر اعظم پاکستان چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کے متعدد رہنما بار بار کہہ چکے ہیں، اور جب تک یہ بات بھارت کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات بار بار کہی جاتی رہے گی، اور اگر اس کے لیے پاکستان کو بھارت سے فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑی تو پاکستان کی فوج، حکومت اور عوام، خاص طور پر سندھ کے عوام ہر وقت اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے اور سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسران سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ بھارت کو میدان کے جنگ اور سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا صرف منہ توڑ جواب ہی نہیں دیا بلکہ پوری بازی کو ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل کے رینک کے حقدار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج نے ہمیشہ شاندار خدمات سر انجام دیں، دوست ملکوں سے آئے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کی یہاں موجودگی ہمارے بہترین تعلقات کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلح افواج ہماری خود مختاری اور سالمیت کی محافظ ہیں۔ بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذوں پر بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سندھو نے بھارتی طیارے گرا کر اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو ثابت کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسلح افواج نے تمام امتحانوں کے لیے بہترین خدمات انجام دیں۔ ہماری مسلح افواج نے بہترین خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوایا۔ ایئر فورس نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، 7 ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث تاریخی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ حکومت اور عوام اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں شاندار فتح سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے جارحیت میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی کوئی مہم جوئی ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کو درپیش خطرات صرف ریاتی جنگ تک محدود نہیں، آج عام محاذ کے بجائے مختلف جہتوں میں صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب معاہدے سے معیشت کو استحکام ملا۔ معاشی استحکام کے لیے بنیادی سطح پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ معاشری بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجیٹل تک آ گئی ہے۔ جی ناظرین، ادھر بھارتی قیادت کی حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر پاکستان نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی قیادت کا بیانیہ امن نہیں، دشمنی کو ترجیح دینے والا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا پاکستان کو عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانا حقائق سے انحراف ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کی معاونت کے شواہد موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کھوکھلے بیانیے اور توجہ ہٹانے کی کوششیں سچ کو نہیں چھپا سکتیں۔ جموں و کشمیر کا تنازع خطے کے امن و استحکام کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی خواہشات اور UN قراردادوں کے مطابق حل کا حامی ہے۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنا خطے کو بد اعتمادی اور تصادم میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ واقعات سے واضح ہے کہ جنگی جنون اور دھونس بے سود ہیں۔ بھارت دھمکیوں اور غلط بیانی یا طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان امن کا خواہاں مگر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے سنجیدگی، برداشت اور مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ جی ناظرین،
दूसरी जानिब इंटरनेशनल सतह पर भारत को हर मास पर नाकामी है। एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जिसकी वजह से भारत की पोजीशन और भी ज़्यादा कमज़ोर होती नज़र आ रही है। याद रहे कि आजकल भारत में मोदी हुकूमत पर भारत की फॉरेन पॉलिसी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हर फॉरेन पॉलिसी के हर मास पर पाकिस्तान की कामयाबी पर भारतीय तज्जियाकार और अपोजिशन मोदी हुकूमत को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत के पास कोई जवाब तक नहीं है। इस हवाले से ये खबर अहम है कि 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भी मौसूल नहीं हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर दावत दी गई तब भी मोदी गलबन मज़कूरा इजलास में शरीक नहीं होंगे, ख़ास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संगीनी से लेगी या नहीं। भारतीय मीडिया का ख्याल है कि दौरे की तैयारी के लिए कम वक्त बचा है। जाहिर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट होता है तो दावतनामे बहुत पहले ही अरसाल कर दिए जाते हैं, लेकिन अब तक भारत को दावतनामा न देना इस बात की गमाज़ी करता है कि आलमी प्लेयर्स को भारत से बहुत ज़्यादा शिकायत है। अब भारतीय मीडिया और हुकूमत ये कह रही है कि अपनी खुफत मिटाने के खातिर अब भारत दावतनामे को कबूल नहीं करेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि सिख अलहदगी पसंदों के मुमकिना एहतजाज और कनाडा के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से भारतीय हुकूमत आखिरी लम्हे के दावतनामे को शायद कबूल न करे। दूसरी जानिब कैनेडियन G7 इजलास के तर्जुमान ने इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं की कि आया मोदी को दावत दी भी जाएगी या नहीं। याद रहे कि रवां माह के वसत में कनाडा G7 के रहनुमाओं की मेज़बानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शामिल होंगे। इससे कबल कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा सामने आया था कि कैनेडियन हुकूमत G7 सरबराह इजलास में नरेंद्र मोदी को मद्दू ही ना करे। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि जब तक भारत कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की मुजरमाना तहकीकात में ताउन नहीं करता, मोदी को G7 इजलास में मद्दू ना किया जाए। जी नाज़रीन, इधर भारत और भारतीय रियासती इदारों की पाकिस्तान दुश्मनी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में यह खबर अहम है कि भारत की शुमाली मशरक़ी रियासत आसाम में पुलिस ने पाकिस्तान से हमदर्दी और हक में सोशल मीडिया पर पोस्टें करने के इल्ज़ाम में 81 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आसाम के वज़ीर आला हमीरत बसवा शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अफराद पर पाकिस्तान से हमदर्दी रखने और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला ने एक बयान में कहा कि 81 मुल्क दुश्मन अनासिर अब जेल में हैं जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते थे। हमारी टीमें मुसलसल सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं और ऐसी पोस्टों पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। आसाम पुलिस ने खबर रसा एजेंसी AFP को बताया कि इनमें से एक शख्स को इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी परचम लगाने पर गिरफ्तार किया गया, ताहम बाकी गिरफ्तारियों की तफसीलात नहीं बताई गई। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में अमल में आई हैं जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद शदीद कशीदगी देखी गई। नई दिल्ली ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, जिसे इस्लामाबाद ने मुस्तरद कर दिया। बाद दोनों ममालिक के दरमियान 4 रोज़ा महदूद जंग हुई, जिसके बाद 10 मई को जंग बंदी पर इत्तफाक किया गया। भारत की इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी ने भी गुज़िश्ता माह एक नीम फौजी एहलकार को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जबकि मकामी मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 10 दीगर अफराद भी मई में इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब राफेल तैयारों को गिराए जाने का मामला भारत के लिए आलमी सतह पर तज़लील व तनकीद के साथ साथ अंदरूनी सतह पर भी एक शर्म व निदामत का मामला बन चुका है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से 4 राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए एक ऐसी हड्डी बन चुकी है कि जिसे न तो वो निगल पा रहा है और ना ही उस हड्डी को उगला जा रहा है। यानी अगर भारतीय हुकूमत फ्रांसीसी तैयारों की तबाही कबूल कर ले तो मुसीबत, और ना तस्लीम करे तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत, क्योंकि तैयारों की तबाही के तमाम तर सबूत
पाकिस्तान समेत तमाम आलमी इदारों के पास मौजूद हैं। याद रहे कि चंद रोज़ कबल एक भारतीय फौज के अफसर ने एक इंटरव्यू के दौरान दबे लफ्ज़ों में यह बात तस्लीम की थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। इस हवाले से भारतीय दिफाई माहिर रश वॉट्स इंटरव्यू में भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ करने पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पर बरस पड़े। रशिद वॉट्स ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस को टेक्निकल गलती के सवाल का सामना करने के लिए बैनुल-अक़वामी फोर्स पर भेज दिया गया। वो भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया का सरबराह भारत में ही है और जगह जगह तकरीरें करने में मसरूफ़ है। भारतीय दिफाई माहिर ने यह भी कहा कि जनरल अनिल चौहान ने भारतीय एयरफोर्स के एक से ज़्यादा तैयारे गिरने की तस्दीक तो कर दी है, मगर ये बताने के लिए तैयार नहीं कि कितने भारतीय तैयारे गिरे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि वो जहाज़ जिनके ऊपर भारत को बड़ा गुरूर था, हमारी फ़िज़ाइया ने ज़मीन पर पटक दिए। हमने बता दिया था कि जो पाकिस्तान पर मेली निगाह डालेगा हम उसके घर तक पीछा करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नारोवाल में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सुबह शाम पीटीआई का सोशल मीडिया मुल्क और फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ था। उनका कहना था कि जितनी बहादुराना और दिलेराना क़यादत का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाहरा किया, तारीख़ में किसी और ने कभी नहीं किया। एहसन इकबाल ने कहा कि 2019 में भी पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली में कहा कि मैं क्या करूं, क्या मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं। आज आपके वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज को ये नहीं पूछा कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन को ऐसा जवाब दें कि उसे पता लग जाए। बताएं कि जो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा, पाकिस्तान उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारने की सलाहियत रखता है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि जूं जूं भारत होश में आ रहा है तो फिर बता रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ कैसे गिराए। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।